سبی اور مضافات کے علاقوں میں بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طوفانی آ گئی۔ تحصیل کٹ منڈائی میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ جانے سے خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ پری مانسون کا طوفانی سپیل بلوچستان کے مختلف شہروں میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سبی اور مضافات کے علاقوں میں بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ سبی کی سب تحصیل کٹ منڈائی میں بیجی ندی میں طغیانی آنے سے گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ گاڑی میں سوار 5 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشوں کو 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد مقامی افراد نے سیلابی پانی سے نکال کر سول اسپتال منتقل کر دیا۔ حادثے کا شکار گاڑی میں سوار افراد کٹ منڈائی سے سبی کی جانب آ رہے تھے کہ سیلابی پانی کی زد میں آ گئے۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ضلع سپر چترال میں گلیشیئر پھٹ گیا۔ علاقے میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ بجلی گھر کی نہر تباہ ہونے سے پورے علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ دریائے تریچ کے نزدیک 8 خاندان نقل مکانی کر گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارشوں کے سبب چھتیں گرنے کے واقعات پیش آئے۔ 3 افراد جان سے گئے۔ لیا مائنز میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ کندیا میں آسمانی بجلی گرنے سے مسجد کا مینار گر گیا۔ طوفانی بارشیں حادثات کا باعث بن گئی۔ کروڑ لال عیسن کی بستی لسکانی میں چھتیں گرنے کے واقعات 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لیا کے علاقے اڈا حفظ آباد میں چھت گرنے سے ماں 3 بچوں سمیت شدید زخمی ہو گئی۔ ایک بچی دم توڑ گئی۔ لاشوں اور زخمیوں کو تحصیل اسپتال کروڑ لال عیسن اور کوٹ سلطان منتقل کر دیا گیا۔ ضلع جہلم کے شہر پنڈ دادن خان میں بارشوں کے باعث چھت گر گئی۔ خواتین اور بچوں سمیت 6 افراد ملبے تلے دب کر شدید زخمی ہو گئے۔ ادھر لیا میں طوفانی بارش کے باعث چمن شاہ کے قریب لیا مائنز میں 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ شگاف سے قریب درجنوں ایکڑ پر موجود کپاس اور تھل کی فصل کو شدید نقصان پہنچا۔ شگاف سے قریب درجنوں ایکڑ پر موجود کپاس اور تل کی فصل کو شدید نقصان پہنچا۔ محکمہ نہار کا عملہ موقع پر نہ پہنچ سکا۔ نہر میں شگاف اوور فلو کے سبب پڑا۔ دوسری جانب کندیا میں آسمانی بجلی گرنے سے مسجد کا مینار گر گیا۔ مینار کا ملبہ گرنے سے مسجد کے سین میں لگے پنکھے ٹوٹ گئے۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں مانسون کی بارشوں سے ندی نالوں میں طوفانی آ گئی۔ سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کوٹلی میں مانسون کی بارشوں نے نیا رخ لے لیا ہے۔ گرمی کا زور ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ شہریوں کی پریشانی بھی اضافہ ہو چکا ہے۔ ابر رحمت انتظامیہ کی غفلت کے سبب زحمت بن چکی ہے۔ آسمان سے گرتی چند بوندوں نے محکمہ بلدیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ سیوریج کا نظام نہ ہونے کے باعث پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ ندی نالوں میں طغیانی کے باعث لاکھوں روپے مالیت کا سامان بہہ گیا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ بلدیات اپنی کارکردگی بہتر بنائے تاکہ مانسون بارشوں کی وجہ سے ہونے والے نقصان سے بچا جا سکے۔ دریائے سندھ میں کٹاؤ کے باعث ڈیرہ غازی خان کی 2 بستیاں ڈوب گئی۔ مکانات منہدم ہونے سے اہل علاقہ پریشان ہیں۔ رپورٹ کریں گے محمد علی۔ ڈیرہ غازی خان دریائے سندھ میں کٹاؤ کے باعث 2 بستیاں ڈوب گئی۔ اہل علاقہ پریشان، کئی مکانات منہدم ہو گئے۔ ڈیرہ غازی خان کے علاقہ سمینہ سادات اور موضع حاجی غازی کی 2 بستیاں صغیرہ ارئی اور بستی بھائی دریا کے کٹاؤ کے باعث منہدم ہو گئی۔ ہم گزارش کرتے ہیں اعلیٰ حکام سے کہ مہربانی کر کے ہمیں محفوظ کیا جائے۔ ہمارے آبادیاں سب ختم ہو گئی، ہمارے گھر ٹوٹ گئے، ہم سیلاب زدگان ہو گئے، اب ہم بیار و مددگار پڑے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اور کمشنر ڈیرہ غازی خان فوراً موقع پر پہنچے اور انہوں نے پیدل دریا کے پشتوں کا معائنہ کیا اور پشتوں کو پتھر سے مضبوط کرنے کے احکامات جاری کیے۔ کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی، سچ ٹی وی، ڈیرہ غازی خان۔ کہروڑ پکا میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تحصیل کروڑ پکا میں ہونے والے بارش انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہریوں کے لیے زحمت بن چکی ہے۔ ایک بارش نے تحصیل انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ نئی نالوں میں شگاف پڑنے سے شہریوں کے گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کو بارہا اطلاع دینے کے باوجود کھڈے بند نہ کیے گئے جس کی وجہ سے گھروں کو نقصان ہوا ہے۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر لودھرا سے بلدیہ کے اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا۔ بارش نے انتظامیہ اور میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی کا پول کھول دیا۔ نالے بند ہونے سے پانی شہر کے مختلف گلیوں اور بازاروں میں جمع ہو گیا جبکہ کروڑوں روپے مالیت کے بنائی گئی سیوریج پائپ لائن پہلے امتحان میں ہی فیل ہو چکی ہے۔ رپورٹ کریں گے ناصر علی۔
हालिया होने वाली बारिश ने इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नाले बंद होने की वजह से पानी जंग चनियोट रोड और शहर के मुख्तलिफ गलियों और बाजारों में जमा हो गया है, जब करोड़ों रुपए मालियत से बनाई गई सीवरेज पाइपलाइन पहले ही इम्तिहान में फेल हो गई है, जिसकी वजह से बहाना के शहरी और ताजिर बिरादरी परेशान दिखाई देते हैं। ਇਹ ਜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ, ਇਸ 28 ਕਰੋੜ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ निकासी का कोई इंतजाम नहीं। डिप्टी कमिश्नर चनियोट से मुतालबा है कि फौरी तौर पर नोटिस ले और पानी की निकासी यकीनी बनाए ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारब, सच टीवी बुआना। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में प्री मानसून बारिशों और यालाबारी से गर्मी का जोर टूट गया। मौसम का हाल सुनाने वालों ने आज मजीद बरसात की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि बास मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी मुतवक्के है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बारखान में ईशानी बाटियानी डैम ओवरफ्लो हो गया। मूसा खेल में बारिशों के बाद सैलाबी मंजर है। बारखान की गलियां पानी में डूब गई हैं। आरिफाला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है और बादल बरसने से गर्मी की छुट्टी हो गई है। खेतों में हरियाली आने लगी है। काश्तकारों ने सजदा शुक्र अदा किया है। नजीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। आरिफाला मानसून की पहली बारिश की वजह से गरीब किसानों के चेहरे खुशी से खिल गए। लोड शेडिंग, नहरी पानी बंद, फसलें इनकी खराब हो रही थी। बारिश से तिल और कपास की फसल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। कुछ किसानों की खुशी का अंदाज तो निराला, ढोल की थाप पर रख। बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि अल्लाह ताला की रहमत हुई है, बारिश आई है, जी साड़ी फसलें बहुत ही खुशगवार हो गई, बीमारियां बहुत आ गई जिनकी वजह तो फसलें साड़ी तबाह हो रही हैं। नहरी पानी कोई नहीं आ, बिल्कुल ख़त्म हो गया। बिजली बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है जिनकी वजह साढ़े बहुत नुकसान हो रहे हैं। जिमीदारों वास्ते अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी रहमत की है कि असी सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने। मजीद अवाम का कहना है कि हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि मानसून बारिशों का स्पेल खैर आफियत से गुजरे। कैमरामैन फैज ब्रिद किच्ची और राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। संडे को फन डे बनाने, खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। तफसीलात जानेंगे बाबर मुगल से। जी बाबर। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कौसार मरी के माल रोड पर। आज वीकेंड है और सयाहों की बहुत बड़ी तादाद जो है मरी में इस वक्त एंजॉय कर रही है। खूबसूरत और ठंडे मौसम से इस वक्त भी मरी में बादलों और धूप की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, लेकिन सर्द हवाओं ने मौसम को खुशगवार कर दिया है। इस वक्त भी लोग मरी के तफरीह मुकामात पर बहुत ज्यादा तादाद में हैं। आइए हमारे साथ एक फैमिली है, उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए और मरी के मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग टूर पे निकले हुए थे। बेसिकली पहले तो हम नारायण कावान गए और अब हम कल से यहाँ मरी में हैं, तो इट्स एक्सट्रीमली चिलिंग, बहुत अच्छा मौसम है। हम बेसिकली चकवाल से आए, वहाँ पे तो इट्स टू हार्ड, लाइक टेम्परेचर 40+ में है। ऐसे लगता है आप तंदूर से जैसे ना फ्रीजर में आ गए। जैसा कि आपने सुना, चकवाल की एक फैमिली ने कहा कि बहुत खूबसूरत मौसम और एंजॉय कर रहे हैं मरी के इस खूबसूरत मौसम में। और चकवाल में तो बहुत गर्मी थी, जैसे लग रहा है हम फ्रीजर में आ गए हैं। और मैं तमाम सयाहों से कहूंगा कि आए मरी के खूबसूरत मौसम को एंजॉय करें और अपने जो है हसीन लम्हात जो है मरी में गुजारें। जी बहुत शुक्रिया बाबर। बुरेवाला में लंपी वायरस ने डेरे डालिए। लंपी वायरस से मुतासरा मवेशियों की तादाद हजारों में पहुंच गई है। बुरेवाला में वैक्सीन की अदम दस्तियाबी की वजह से हजारों मवेशी लुकमे अचल बन गए। मवेशी मालकान का कहना था कि हमारे इलाके में अब तक इंतजामिया की जन्म से वैक्सीन फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से मवेशियों की खरीदो फरोख्त में भी कमी नजर आने लगी। व्यापारी सर पकड़कर बैठ गए। हमारा मवेशियों पे ही रोजी का वसीला है। हमारे बच्चे ये रोजी हम कमा कर जाएंगे तो वो खा सकेंगे, लेकिन महकमा की तरफ से जाते हैं तो वो पैसे मांगते हैं।
तो हम कहाँ से पैसे इसने ला कर दें इनको। शहरियों ने महकमा लाइफ स्टॉक से वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। जमींदारों का कहना था कि वायरस की वजह से जानवरों के फजले में खून आना शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि हमारे रोजगार का इन्हिसार इन्हीं जानवरों पर है, लेकिन इंतजामिया हमारी एक नहीं सुन रही। अहले इलाका ने DC विहाड़ी, कमिश्नर मुल्तान और वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि जानवरों को इस मूजी वायरस से बचाया जा सके। कैमरा टीम की हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, भूरेवाला। जानवरों में खतरनाक लंपी वायरस मजीद फैल गया। महकमा लाइफ स्टॉक की कारकर्दगी फोटो सेशन तक महदूद हो गई। बर वक्त वैक्सीनेशन न होने के बायस जलालपुर पीरवाला के दही इलाकों में कीमती जानवर हलाक हो गए। जलालपुर पीरवाला के मवेशी पाल हजरात की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। जानवरों में पाया जाने वाला लंपी नामी वायरस मजीद फैल चुका है। मुतादिद इलाकों में लंपी वायरस से मुतादिद जानवर मुतासर होने लगे। व्यापारी कहते हैं महकमा लाइफ स्टॉक को मुतादिद बार इतला दे चुके, लेकिन मुतासरा इलाकों में कोई भी वैक्सीनेशन के लिए नहीं आया। व्यापारियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। सराय सिद्धू में लंपी वायरस के वार तेज हो गए। हजारों मवेशी मोजी मर्ज के बायस लुक में अजल बन गए। शहरियों ने महकमा लाइफ स्टॉक से वैक्सीन फराहम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे सईद अली रजा। की तरह सब तहसील सराय सिद्धू में भी मवेशियों पर लैंपिस स्केद नामी वायरस के वार तेजी से जारी हैं, जिसके बहस कीमती जानवर इस गुलटी वाली जानलेवा वायरस का शिकार होकर लुकमा उजल बन चुके हैं। मगर महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से मुतासरा जानवर के वक्त पर वैक्सीनेशन का कोई खातिर खवा इंतजाम न करने से मोजी वायरस बरक रफ्तारी के साथ फैलता चला जा रहा है। छोटे बड़े तमाम मवेशियों को अपनी लपेट में ले रहा है। कुणसरगाना में एक गरीब दिहाड़ीदार का कुर्बानी के लिए पाला गया बैल मालियत 3 लाख लुकमा उजल बन चुका है। सारे मेरे जो है ना 3 तो 4 दिन वास्ते बीमारी है, अचानक पता भी नहीं लगा। गरीब आदमी आ, 3 लाख रुपए का दान दा कुर्बानी वास्ते सांभी होया। गरीब आदमी वेचे सा अपनी जरूरत ले सा, वो दान मार गया। बाकी दे 5-6 डंगर उन्होंने वास्ते हालात बहुत माड़ी हो गई है। लिहाजा मेरे वास्ते हुकूमत मेरे वास्ते मेहरबानी करे, गरीब आदमी आ 400 तो 500 रुपया मजदूरी करे ना। शहरियों का कहना है कि ईद उल जुहा करीब है, जिसकी वजह से मवेशी मंडियों में जानवरों की तादाद बढ़ती जा रही है। मगर सराय सिद्धू दीगर इलाकों में वैक्सीन लगाने का अमल ताखीर का शिकार है। महकमा लाइफ स्टॉक अमले का कहना है कि हमारे पास सरकारी वैक्सीन मौजूद नहीं, हम कहां से लगाएं। वैक्सीन न लगाने से कीमती जानवरों के ज़िया का खदशा है। शहरियों ने DC खानेवाल से फौरी वैक्सीन के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने का मुतालबा किया है ताकि हमारे जानवर इस मूजी मर से बच सकें। कैमरा टीम के साथ सईद अली रजा नकवी, सच TV, सराय सिद्धू। ओकाड़ा में लाहौर से मुल्तान जाने वाली माल गाड़ी पटरी से उतर गई। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। लाहौर से आने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया। रेलवे हुकाम की तरफ से डाउन ट्रैक को बहाल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। यजमान के नवाही इलाके के गरीब तबके के 200 घराने गर्मी, महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। बेआसरा खानदान अपने बच्चों के लिए छत के मुंतजर हैं। रिपोर्ट देखिए चौधरी कमल महमूद की। एक तो गुर्बत, ऊपर से शदीद गर्मी। अरसा 30 साल से एक जगह पर मकीन यजमान चुलिस्तान के इलाके 110 TV में रहने वाले ये लोग खाना बदोश नहीं बल्कि बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। सियासतदान आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, ना रहने को छत दी ना रहने को जमीन। अब यहाँ के चौधरी जमीन खाली करवाने पर मजबूर करते हैं और धमकियां देते हैं कि जमीन खाली की जाए। हुण सानू गरीबां नूं तंग करदे ने, असीं वोट भी साथों लैंदे रहे ने, कोई शै नहीं सानू देंदे ते हुण सानू उठाउंदे पए ने। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ अपील करने में साडी गरीबां दी सुनो, इत्थे कोई नहीं साडी कोई सुनदा पिया। बुनियादी हकूक से महरूम कच्ची आबादी के सैकड़ों मकीनों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इनको इनका बुनियादी हक दे, हुकूमत इनको इनकी ज़मीन दे और घर बनाने में माली मावनत भी करे। शहरी मुल्क भर में महंगाई के तूफान पर बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है कि अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए मुहाल हो चुका है। आए दिन महंगाई गरीब को मौत के मुंह में धकेल रही है। हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा हो गया है। गवर्नमेंट को चाहिए इस पे नज़रसानी करे, गरीबों की भलाई के लिए कोई सोचे, कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जिससे आवाम खुशहाल हो जाए। 35 लीटर पेट्रोल हो गया, गरीब आदमी परेशान हो गया। ठीक है, इंसान अपनी रोजी नहीं कर सकता, बच्चों की किधर जाए, भूख से मर रहे हैं कि हम बच्चों को अपने क्या खिलाएं। इतनी महंगाई हो गई है। आप घी देखो कितना पहुँच गया है, तेल देखो कितना पहुँच गया है, दालें देखो, हर चीज़ महंगाई हो गई है। 500-600 में हमारा क्या होगा। पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, हर चीज़ महंगी। माना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही गरीब और अमीर का फ़र्क अब ख़त्म हो गया। 100 रुपये और 200 रुपये तक पेट्रोल डलवाने वाले शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन।
जहलम में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ गरीब और अमीर का फर्क अब खत्म हो गया। 100 रुपए और 200 रुपए तक पेट्रोल डलवाने वाले शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों ने हर एक को हिला कर रख दिया है। मजदूरी तो मुश्किल है। कल की आपको बात बताऊं, कल 900 रुपए का तेल जलाया और 1000 रुपया साथ कमाया। 900 इनके लिए कमाया पेट्रोल पंप पर, 1000 रुपया अपने लिए बस ये बचा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोटी खा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों की वजह से मोटरसाइकिल चलाने वाले अब साइकिल पर आ गए हैं। हुकूमत की तरफ से आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से जेहलम के शहरी भी शदीद कर्ज में मुब्तला है। वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हमारा घरेलू बजट मुतासर हो रहा है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। उधर पिपला में भी महंगाई का तूफान आ गया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही अशिया खुर्नोश के नरखों को भी पर लग गए। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान। भर की तरह पिपला में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अशिया खुर्दोनोश और फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। हुकूमत जो 13 पार्टियों पर मुश्तमिल है, ये महंगाई मार्च करके महंगाई को ख़त्म करने के लिए आई थी, लेकिन ये दिन ब दिन महंगाई में इजाफा करके गरीबों के चूल्हे ठंडे कर रही है। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान से बढ़ती हुई महंगाई को फिलफौर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। मोहम्मद इमरान, नुमाइंदा सच टीवी, पिपला मियाँवाली। आरिफवाला के किसानों की मुश्किल कम होने के बजाय बढ़ने लगी। डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से काश्तकारों को फसलें काश्त करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए जावेद रजा की। मुल्क में जारी महंगाई के सुनामी ने शोबा ज़राअत को भी हिलाकर रख दिया। डीजल, खादें और बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने आरिफवाला में किसानों के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर दी। बिजली महंगी होने से ट्यूबवेल का पानी 400 से बढ़कर 800 रुपए फी घंटा हो गया, जबकि डीजल और खादों की कीमतें बढ़ने से फसलों की पैदावारी लागत में दुगना तक इजाफा हो गया। पहले आम काश्तकार 1 एकड़ की फसल 50-60 हजार में तैयार कर लेता था। अब इस कदर ज्यादा अखराजात बढ़ गए हैं कि 1 एकड़ की फसल 1,20,000 में तैयार हो रही है। महंगाई के डसे किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत डीजल, खाद और बिजली सस्ती करे ताकि शोबा काश्तकारी से जुड़े रहते हुए खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। खून सफेद हो गया। आरिफवाला के नवाही गांव जमन शाह में जमीन के तनाज़े पर भाई लड़ पड़े। गोलियां चलने से एक भाई कत्ल जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। कातिल गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर पारा चिनार से ताल्लुक रखने वाली बच्ची ने माजूरी और गुर्बत को कमजोरी ना बनने दिया। हाथों से महरूम बच्ची पाँव की उंगलियों से लिखने की महारत रखती है। बाहिम्मत तालिबा लगन के साथ तालीम का सफर जारी रखे हुए है। रिपोर्ट करेंगे जावेद पंगश। इंसान की जिस्मानी मजदूरी अक्सर माशरे पर बोझ बन जाती है, मगर पारा चिनार की गाँव की बाहिम्मत रुकैया दोनों हाथों से पैदाइशी मजदूर होने के बावजूद इंतहाई गुर्बत में तालीम हासिल कर रही है। वो पाँव से लिखती है और मैट्रिक एपीएससी के बाद इस वक्त पारा चिनार पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज से बॉटनी में BS कर रही है। मेरे वालिद गुज़िश्ता साल कोरोना से फौत हो गए। उनकी पेंशन की रकम से मैं अपनी तालीमी अखराजात पूरी कराई हूँ। मेरी हुकूमत वज़ीर आला से अपील है कि मेरे साथ तालीमी अखराजात में मदद करे। रुकैया की मजदूरी तो तालीम हासिल करने की शौक में रुकावट न बन सकी, मगर गुर्बत इसकी तालीम में शदीद मुश्किलात पैदा किए हुए हैं। गुज़श्ता साल कोरोना के बायस रुकैया की वालिद की वफात के बाद उसकी महदूद पेंशन से घर का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा है, जबकि तालीम मुकम्मल करने के लिए सूबाई व वफाकी हुकूमत से अपील कर रही है। जावेद बंगाश, सच न्यूज़, पारा चिनार, जिले कुरुम। सिंध के शहर खैरपुर में इलेक्शन कमीशन का कारनामा। इंतकाल कर जाने वाले असाज़ा की ड्यूटियां मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर लगा दी गई। 1 साल कबल इंतकाल कर जाने वाले गुलाम रजा की ड्यूटियों भटियों के वार्ड नंबर 2 पर लगा दी गई। टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 2 पर 8 माह पहले इंतकाल करने वाले अली मर्दा की तैनाती का ऐलान कर दिया गया। खैरपुर नाथन शाह में थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। कसीर तादाद में शहरियों ने खून का अतियाद किया। मजीद जाने रजब अली की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथन शाह थैलेसीमिया के खतरनाक अमराज में मुब्तला मासूम बच्चों के लिए ब्लड डोनेट कैंप मुनक्कद की गई। ब्लड डोनेट कैंप में कसीर तादाद में शहरियों ने खून का अतियाद किया। हमारे नवाब शाह थैलेसीमिया सेंटर पे 2500 पेशेंट एडमिट है। उनको फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। टेस्ट हैं, हेपेटाइटिस B, C, टाइफाइड, मलेरिया, उनको जो भी टेस्ट वगैरह होती है वो हम फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। हमारे पास थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी नवाब शाह में 2400 बच्चे हैं।
जो हर रोज़ 80-90 100 के मतलब क्रॉस भी होता है जब ब्लड लगता है। उनका मजीद कहना था कि हम शहरियों को अपील करते हैं कि वो अपना खून हत्या करें और मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने में हमारी मदद करें। रजब अली, सच टीवी, खैर पुनाथन शाह। रहीम यार खान में कॉन्गो वायरस का मुश्तबा मरीज दम तोड़ गया। कॉन्गो वायरस के 3 मुश्तबा मरीज शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। वायरस की तस्दीक के लिए ज़ेर इलाज मरीजों के नमूने क़ौमी इदारा सेहत को इरसाल कर दिए गए। मुश्तबा केसेस सामने आने पर इंतजामिया और महकमा सेहत की टीमें हाई अलर्ट हैं। कॉन्गो वायरस से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में आलमी वायरस कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा होने लगा। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 4.10% तक पहुँच गई है। DHO इस्लामाबाद के मुताबिक इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1098 केसेस रिपोर्ट हुए। 45 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। शहर इक़्तिदार में 1,35,745 कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज अब तक सामने आए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में अब तक कुल 1024 अफराद वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन ज़िला खानेवाल के सदर ने मार्जिन बढ़ाने के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मार्जिन ना बढ़ाने की सूरत में 1 जुलाई से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर दिया। राशिद हुसैन की रिपोर्ट। पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन ज़िला खानेवाल के सदर हुमायूं खान ने पेट्रोलियम एसोसिएशन ज़िला खानेवाल के दीगर ओहदेदारान के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौजूदा मुआशी हालात में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस हालिया कमीशन पर कारोबार जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। गवर्नमेंट उस वक्त तक कोई बात नहीं सुनती जब तक हमें स्ट्राइक पे मजबूर ना कर दें। हालात और वाक़ियात के मुताबिक जो महंगाई है उसके अंदर हम इस तरह कोई एक्शन कर ले स्ट्राइक की तो बहुत बुरी बात होगी। पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन के अहदेदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर कमीशन में 6% इजाफा ना किया गया तो 1 जुलाई से जिला भर समेत तमाम पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा राशिद हुसैन, सच न्यूज़ खानेवाल। कमालिया में महकमे तालीम के ज़ेर एहतमाम एंटी डेंगू आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील बर से एतसादे कराम ने शिरकत की। असद राजपूत की रिपोर्ट। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में डेंगू से बचाव के लिए आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील बर से असातिज़ा कराम ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का कहना था कि डेंगू खामोश मर्ज है, जिसम में इस बीमारी के वायरस की मौजूदगी की तस्दीक सिर्फ लेबार्ट्री में खून की जाँच के जरिए ही मुमकिन है। गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि ये सेमिनार्स करवाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दी जाए। हमारा टीचर जो है वो कम्युनिटी को अवेयरनेस देने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन टूल है और मैं अपने टीचर से गुजारिश करूंगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयरनेस दें, बच्चों को एजुकेट करें ताकि वो अपने इर्द गिर्द जो डेंगू का लार्वा है उसको बर वक्त ख़त्म करें, ताकि ये बीमारी हमारे माशरे में पहली तरह कोई तबाही फैलाने का सबब न बने। हुकूमत पंजाब के हम कदम चलते हुए तमाम साथिज़ा कराम अपने फ़राइज़ के हिस्से की ड्यूटी सर अंजाम दें और बच्चों को डेंगू जैसी मूजी वबा से बचाने के लिए आगाही मुहिम का हिस्सा बनाएं, ताकि इस बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जा सके। डेंगू का खात्मा हम सब का कौमी फरीज़ा है, हम इसे एहतियाती तदाबीर करके ही ख़त्म कर सकते हैं। असद राजपूत, सच न्यूज़ टीवी, कमालिया। मुजफ्फरगढ़ के मरीजों का दरीना मसला हल हो गया। डिप्टी कमिश्नर ने फ्री बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं समीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ अरसा दराज से बंद मरीजों को इंडस अस्पताल ले जाने वाली फ्री बस सर्विस का बाकायदा आगाज डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर और चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी हमाद नवाज टीपू ने किया और कहा कि महंगाई के इस दौर में ये किसी नेमत से कम नहीं कि आवाम को इंडस अस्पताल तक मुफ्त सफरी सहूलत मुयसर आएगी। दूसरी जानब चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी हमाद नवाज टीपू का कहना था कि इंडस अस्पताल वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का जनूबी पंजाब की आवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है, जहाँ हजारों लोग बेहतरीन इलाज से फैजाब हो रहे हैं। वहीं पर मरीजों के लिए मुफ्त सफरी सहूलत मुहैया करना डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की काविश को अवामी समाजी हलकों ने खराज तहसीन पेश किया। हुकूमत का ये एक बहुत अच्छा इकदाम है कि इन्होंने यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाया जिसको हम टर्किश हॉस्पिटल कहते हैं। माशाल्लाह बहुत हाई लेवल की वहाँ पे ट्रीटमेंट है, हर हाई स्टैंडर्ड की किस्म की वहाँ पे अद्वियात और इलाज की सहूलतें मैसर हैं, लेकिन वो थोड़ा शहर से दूर था। तो फिर हमने ये फैसला किया है कि लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने कहा बस दिन में 3 से 4 मरतबा मरीजों को शहर से अस्पताल और अस्पताल से वापस पहुंचाएगी। शहरा में लंपी वायरस तेजी से फैलने लगा। कसाब मुजर सेहत गोश्त शहरियों को सस्ते दामों फरोख्त करने लगे। अहले इलाका ने महकमे फूड से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानेंगे तहसीन अबरार से। जी तहसीन।
جی بالکل، لمپی اسکن ڈیزیز جو ہے ملک کی دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ میں بھی آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے۔ باڑوں میں ایسے بیماری سے کئی جانور متاثر ہو چکے ہیں، کچھ مر بھی گئے ہیں۔ ایسی سچویشن میں کچھ مفاد پرست لوگ سوسائٹی میں موجود ہیں، کچھ کسائی جو ہے نا باڑے کے مالکان سے رابطے میں ہے اس متاثرہ گوشت کو سستے داموں میں خریدنے کے لیے۔ حالانکہ ڈاکٹر نے ہدایت بھی دی ہے کہ اس کے گوشت اور دودھ پینے سے جو ہے نا صحت خراب ہو جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا نے ابھی کوئی ایسے اقدامات نہیں کیا، نہ ویکسینیشن سینٹر قائم کیا ہے، نہ کچھ ویکسینیشن جو ہے نا وہ اس کا عمل شروع کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کو چاہیے کہ اس کی نقل مکانی پر پابندی عائد کر دیا جائے تاکہ دیگر صوبہ سے جو متاثرہ جانور یہاں پر لائے جا رہے ہیں اس پہ مکمل پابندی عائد کیا جائے۔ بہت شکریہ تحسین۔ مہنگائی کا سونامی سب بہا لے گیا۔ ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں 40 سے 50% کا اضافہ کر دیا گیا۔ زوار ظفر اقبال کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر کی طرح حافظ آباد میں بھی تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں 20 سے 40% تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کو جیسے پر لگ گئے ہیں۔ چینی 90 تا 100 روپے فی کلو، گھی 550 تا 600 روپے فی کلو، کوکنگ آئل 580 روپے تا 620 روپے فی کلو، چاول 250 روپے فی کلو، دالوں کے ریٹوں میں بھی 100% تک اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں نے سچ نیوز کو بتایا جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں میں ڈیلی اضافہ ہو رہا ہے اور رات گئے عوام کو پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ اضافہ کر دیتے ہیں۔ بتایا کہ پاکستان میں مہنگائی کا جن بوتل سے باہر نکل آیا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے کرنے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے باعث ہم اپنے بچوں کو کھانے کے لیے اشیاء خوردونوش جس میں گھی، چینی، آٹا، چاول، دالیں نہیں خرید کر دے سکتے۔ اب عام آدمی کے لیے گھر چلانا ناممکن اور بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ اشیاء خوردونوش کی تمام چیزوں کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ کیمرہ مین وارث علی خان کے ساتھ زوار ظفر اقبال، سچ نیوز، حافظ آباد۔ تحصیل جہانگیرہ کے متعدد علاقوں میں شدید گرمی اور خشک سالی کی وجہ سے کنویں خشک ہو گئے۔ علاقہ مکین پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ رپورٹ کریں گے ندیم احسان۔ تحصیل جہانگیرہ کے متعدد علاقوں میں شدید گرمی خشک سالی کی وجہ سے کنووں کے پانی خشک ہو گئے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین بوند بوند کے لیے ترس گئے۔ نظام پور کے مختلف گاؤں کے علاوہ خاورئی، درگئی اور کنڈ میں بھی پانی کی سطح کم ہو گئی ہے۔ جی کنڈ بشمول ضلع نوشہرہ میں بہت زیادہ پانی کا بحران ہے، خاص کر پھر ہمارے علاقے کنڈ ایریا میں، چونکہ جی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا بھی مسئلہ ہے اور پانی کی سطح بھی کافی حد تک نیچے گر رہی ہے۔ ہماری پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے گزارش ہے کہ وہ اس پہ خصوصی توجہ دے اور ہمیں سولر سسٹم بھی لگا کے دیں تاکہ بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو اور یہ عوام کو جو پانی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے۔ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے بچے، بوڑھے، خواتین پریشان ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومت نے بھی آنکھیں بند کی ہے۔ سرکاری ٹیوب ویل نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس دور جدید میں بھی پانی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے اور علاقہ مکینوں کو پانی کی شدید قلت ہے۔ ندیم احسان، سچ نیوز، جہانگیرہ۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں مانسون کی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ سیوریج کا پانی گھروں میں داخل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شمس ملک کی رپورٹ۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں مونسون کی بارشوں نے رخ تو کیا، گرمی کا زور ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ شہریوں پر نئی مصیبت نے جنم لے لیا۔ چند منٹوں کی بارش نے بلدیاتی اداروں کا پول کھول کر رکھ دیا۔ سموسا چوک بائی پاس پر سیوریج کا بہتر نظام نہ ہونے سے پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا۔ دوسری طرف کوٹلی کا علاقہ گل پر ندی نالوں میں طغیانی کے باعث پانی دکانوں کے اندر سے لاکھوں روپے کی مالیت اپنے ساتھ لے اڑا۔ بارش ہوئی ہے ضرور، گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے، لیکن شہر میں جو سیوریج کا نظام ہے وہ بالکل جوں کا توں پڑا ہوا ہے۔ نالیاں اور جو بڑے نالے ہیں وہ بند ہونے سے بازاروں میں، گلیوں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دکانوں کے اندر بھی پانی جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، جس سے تاجروں کو شدید پریشانی کا بھی سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بلدیاتی ادارے خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف ہیں اور ہمارا لاکھوں کا نقصان ناقابل برداشت ہے۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلدیاتی ادارے اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے تاکہ آئندہ مونسون کی بارشوں کی وجہ سے مالی نقصان کے ساتھ ساتھ انسانی جانیں بھی ضائع نہ ہوں۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ شمس ملک، سچ نیوز، کوٹلی آزاد۔ کراچی میں کل عدم تحریک طالبان کا مطلوب دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا۔ ضلع غربی میں تھانہ سائٹے کی حدود میں نورس فرنگی کے قریب CTG اور رینجرز نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کے دوران
कलदम TTP के मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद इलियास वल्द ख्याल मोहम्मद को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से नाजायज़ असलहा बरामद कर लिया गया। रेड बुक के सफ़ा नंबर 51 पर इंतहाई मतलूब था, जो मुलजिम कारी शाकिरुल्लाह का करीबी साथी है। मज़कूरा मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सऊदी अरब में रूपोशी भी इख्तियार की थी। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 2013 में शेर अहमद खान नामी शख्स को साइट ए की हदूद में कत्ल किया था। मुलजिम ने 2012 में कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खलीफा मंसूर ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में शोबह सेहत की बेहतरी के लिए एक और बड़ा इक़दाम उठाते हुए मुल्क की CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला कर लिया। सरबराह स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म सलमान सूफी ने कहा कि इमरजेंसी हालात में जान बचाने वाली बैनुल अक़वामी मयार की CPR ट्रेनिंग लाखों ज़िंदगियाँ बचाने में मुआविन साबित होगी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस हवाले से सरबराह स्ट्रैटेजिक रिफॉर्म्स को फौरी इक़दामात की हिदायत है। जान बचाने वाली CPR ट्रेनिंग को स्कूल्स के निसाब में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा हर शहरी को CPR की तरबियत देना भी मुहिम का हिस्सा होगी। सलमान सूफी ने कहा, आइंदा हफ्ते इस मुल्क गिर मुहिम के हवाले से मुकम्मल लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शोबा सेहत में मेरिट की बालादस्ती, बैनुल अक़वामी मयार की तालीम और सूबा पंजाब में अस्पतालों के क़याम को यकीनी बनाया। वज़ीर-ए-आज़म वज़ारत उस्मा संभालने के बाद कौमी सतह पर सेहत के शोबे में इस्लाहात का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। मुल्क गिर जान बचाने वाली CPR की तरबियत की मुहिम इस सिलसिले की पहली कड़ी है। इलाकाई खबरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट shtv.pk। देखते रहिए सच।